I think हाँ आप सिर्फ मोटिवेशन पे रिलाई नहीं कर सकते because it comes and goes. Some days you're just really feeling it, but अगले दिन ऐसे लगता है कि नहीं छोड़ दे सब. When I was working, तब इतना intense stage पे नहीं था preparation. तब जो रात में classes होती थी 10 to 12, I used to attend that एकदम diligently. अभी matter नहीं करता, score matter नहीं करता. It's what matters is that you really look कि कहाँ पे फंस रहे हो एंड उसको एनालाइज करो, उसको इम्प्रूव करो. ये आप साइकिल चलाना सीखते हो तो 4 बार गिरना पड़ता ही है, तभी जाके सीखते हो. सो इट वाज द सेम केस विद दिस. यू हैव टू टेल योरसेल्फ दैट बिकॉज हानी सर ने खुद ने इतने बार क्वांट्स रिवाइज करा के दिया कि यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग डिफरेंटली अपार्ट फ्रॉम दैट. मदर आल्सो गॉट वेरी हैप्पी ऑब्वियसली, तो रोने लगे. वैसे ही हक किया मुझे. आई थिंक आपको फोकस इस पे रखना होगा कि यू नो व्हाट इज द एंड गोल. Huge congratulations on securing your IIM Bangalore convert. थोड़ा सा पहले अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, your school, colleges and what were you doing before CAT? Right. So first of all, thank you for having me here. Converting IIM Bangalore was one of the dreams, and sitting here is just making me realize that actually, wow, that has happened. ऐसे अभी तक hit नहीं हुआ था कि result लग गया and that I'm in. But yeah, I think this feels great. Talking about my life up till now, मैंने मेरा schooling 12th तक नासिक से किया है, नासिक present Maharashtra, and after that for my graduation I moved to Pune. I did my engineering in VIT Pune. Production engineering was my branch, and after that I was working in a marketing agency called Dentsu, which is a Japanese company. I was working there as a business analyst, and I was gradually promoted to a business strategy manager. मैं वहाँ पे 3 साल था, and in my third year actually I decided that corporate ladder climb करना है, तो इससे नहीं चलेगा. I'll have to do an MBA from a reputed institute, and that is when I decided that I want to give a shot at CAT. So from which colleges did you receive calls and which are the one that you have successfully converted so far? So barring IIM Ahmedabad, I had the rest of the calls. Also IIM Shillong, I didn't get a call, but बाकी सब आ गए थे. And अब तक जितना result लगा है, Bangalore and FMS are the ones I've converted, and I've decided to go and join IIM Bangalore. So I'm excited. ये आपका पहला अटेम्प्ट था कैट का या फिर आपने प्रीवियस ईयर भी आपने अटेम्प्ट किए थे कैट? Right. So this was my first serious attempt. इसके पहले मैंने ऐसे फॉर्म भर दिया and उठ के एग्जाम को चला गया था, but I hadn't really prepared anything. I was twice before, but this time मैंने seriously prepare करके पढ़ाई करके एग्जाम दिया था. ओके, तो आपका परसेंटाइल कितना आया है कैट में? It was 99.11 this year. ओके, और प्रीवियस ईयर क्या था? Previous years it was the first time मैंने दिया था it was 90 and second year it was around 88. So can you tell me what specific changes did you make in your preparation जो आपको इतना अच्छा स्कोर करने में हेल्प किया this year? तो पहली बात तो मैंने Elitesgrid लगाया था. That was the first step. And the difference between the past 2 years was that I actually studied this time. मैंने एकदम seriously focus होके exam दिया था. I drafted out a plan कि how to go about it. And obviously being with the class really helped a lot. तो आपने जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ स्टडीज कैसे मैनेज किया? Right. So I think बहुत difficult होता है for a lot of people to manage preparation and job as well. Fortunately for me, I started my preparation in June, but मैंने September तक resign कर दिया था अपनी job से because तब थोड़ा tough हो रहा था manage करने को. तो that helped me in the last stages, mock वगैरह के time पे to completely focus on my preparation. ओके, तो आपने एलिटग्रिड ज्वाइन करने का सोचा था, तो Yes. आपको किससे पता चला था एलिटग्रिड के बारे में या फिर आपने खुद ने ही रिसर्च किया था फिर आपको एलिटग्रिड के बारे में आप डिसाइड किया कि ज्वाइन करेंगे? So when I started preparation in the beginning of June, मैंने ऐसे सोचा था कि मैं self study से ये निकाल लूंगा, which was I think not really a wise choice. While I was doing that, मेरे एक mentor और sort of like a big brother थे in my company where I was working, and जब मैं उनसे बात कर रहा था, he suggested me that when he was attempting his CAT, so he had heard about Elitesgrid. He had not joined himself, but उन्होंने मुझे बहुत strongly recommend किया था कि आप यही join करो, especially targeted for people who are working. So I think if you join that and just बाकी hand holding वो तुम्हारा करेंगे, just join it and you won't have second doubts. So उनसे पता चला and then I took the decision and I think it has paid off really well. तो आपने कौन से बैच में एनरोल किया था और कब से आपका क्लासेस स्टार्ट हुआ था? I enrolled in the Sigma batch, which if I'm not wrong June में ही चालू हुआ था, but I joined the class a little later in July. So I had some stuff to cover up, which I did, but so थोड़ा उसकी वजह से फ्रिक्शन था, बट हो गया था मैनेज. ओके,
तो प्रिपरेशन के टाइम पे ना अप्स एंड डाउन्स तो हो सकते हैं सबके ही, तो तुम्हारे भी जर्नी में ऐसा फेज आए होंगे जहां आप स्टक हो गए थे या फिर आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे थे, तो उस वक्त आप क्या किए थे, लाइक हाउ डिड यू पुल योरसेल्फ आउट? Right. I think the most important factor, चाहे preparing for an exam or anything where you are, targeting over a period of time, I think हाँ। आप सिर्फ motivation पे rely नहीं कर सकते because it comes and goes. Some days you're just really feeling it, but अगले दिन ऐसे लगता है कि नहीं छोड़ दे सब. तो ऐसे बहुत बार होता था, कभी किसी मॉक में कम स्कोर आ जाए या कभी जब मैं काम कर रहा था तो वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाए या फिर घर पे कोई सिचुएशन है, तो ऐसे होते रहता था. आई थिंक एक सर हनी सर ने एक बात बोली थी ड्यूरिंग वन ऑफ द क्लासेस कि व्हाट मैटर्स इज दैट यू शो अप. आप जितना आपका डेली डिटर्मिनेंट है कि इतना मेरे को करना ही है, राइट, उतना करो, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, एंड दैट विल टेक यू प्लेसेस. तो आई थिंक दैट इज द एडवाइस आई फॉलोड एंड इट अगेन डिड पे ऑफ. तो आपका ऐसे कोई शेड्यूल था जो आप फॉलो करते थे एवरीडे, बिकॉज आप वर्क करते थे ना, कोई कोई दिन था कि बहुत ज्यादा काम है एंड पढ़ाई का टाइम कम हो गया, तो फिर आपका ऐसे नॉर्मली शेड्यूल क्या था? Right. So I was when I was working तब इतना intense stage पे नहीं था preparation. तब जो रात में classes होती थी 10 to 12, I used to attend that एकदम diligently. And उसके बाद just after the class में थोड़ा revise करता था class में क्या हुआ है before I went to sleep, so that वो information retain कर पाऊँ. Next day before going to work, I used to again sit for a couple of hours if possible, and then head to work. और I think that was the schedule. This was when I was working. But जब वो phase खत्म हुआ तब I think I amped it up a little. I think ऐसे 6 to 7 hours पढ़ाई हो जाती थी in the last 2 months. तो कैट में 3 सेक्शंस होते हैं ना, वीआरसी, डीआईएलआर एंड क्वांट्स, तो Yes. कौन सा सेक्शन सबसे टफ लगा था इनिशियली स्टार्टिंग में? So the thing is कि मुझे I think VARC easy लगता था because I had a knack, मतलब मैं writing वगैरह करता था थोड़ा, तो I had a habit of reading also. So I thought that I'll glide through this. Uh, मेरे साथ हुआ ऐसा था कि एंड क्वांट्स भी आई थिंक 12 तक तो मैथ्स पसंद था, इवन इंजीनियरिंग में आई हैड डन गुड इन मैथ्स, बट मेरा ऐसा होता था कि जिस सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करूँ वो सब्जेक्ट हार्ड हो जाता था. जैसे अभी इफ फॉर 3 weeks आई एम फोकसिंग कम्प्लीटली ऑन VARC एंड क्वांट्स, तो DILR एकदम टफ हो जाता था. एंड वाइस वर्सा, इट हैड इवन कम टू अ पॉइंट जहाँ पे मेरे को VARC बहुत टफ लगता था. मॉक्स में स्कोर नहीं आते थे, सेक्शंस में स्कोर नहीं आते थे, 30 नीचे आ जाता था. तो आई वाज अ लिटिल वरीड देन. तो ये फेज में चलता रहा. बट इफ आई टॉक अबाउट एन ओवरऑल पिक्चर, आई थिंक DILR वाज बहुत ही आई वुड से अनप्रेडिक्टेबल सा था for me, and that is what used to worry me a lot. So yeah, that. Okay, so how did you approach and tackle that specific section? As you said, DLR was challenging for you. Right. So how did you tackle that specific section to improve your performance? So I think Gaurav sir हमारे DILR classes लेते थे, and he had constantly said this one thing. बार बार हमको ऐसे बताते थे कि it doesn't matter आपसे puzzle solve हो रहा है नहीं हो रहा है, टाइम लग रहा है, टाइम के अंदर solve नहीं हो रहा है. All you have to do is that you just have to solve every day. आपको एंड खुद से सॉल्व करना है. आप सोल्यूशन देख के सॉल्व करोगे तो देन देयर इज नो पॉइंट. आपका वो वैसे मेथड ऑफ थिंकिंग डेवलप ही नहीं होगा अनलेस यू डू दैट. सो उनका ये कहना था, बार बार कहना था कि आप सॉल्व करो, यू गेट टू द सोल्यूशन बाय ऑन योर ओन, चाहे 1 घंटा लगे 1.5 घंटा लगे, उसको करो. एंड आई फॉलो दैट स्ट्रेटेजी एंड इट हेल्प कि मतलब इट हैड कम टू पॉइंट कि यार एटलीस्ट चलो मिनिमम 2 पजल तो निकल जाएंगे. बिकॉज आप सॉल्व करने लग जाओ अपने आप से, तो यू स्टार्ट फिगरिंग आउट पजल्स, एंड देन प्रैक्टिसिंग मोर ऑन दैट फ्रंट आपका वो टाइम लिमिट के अंदर भी होना चालू हो जाता है. सो आई थिंक वैसा ही प्रोग्रेशन रहा था मेरा भी. तो जब आपने फुल लेंथ मॉक्स देना स्टार्ट किया तो आपका स्कोर इनिशियली हाई था या लो था? एकदम ही खराब था मेरा स्कोर. इनिशियली मेरे को लगा था कि अभी आई डोंट थिंक देयर इज अ पॉइंट इन डूइंग दिस. फुल लेंथ वॉक तो मैंने मतलब स्टार्टिंग में ही दे दी थी जून जुलाई के टाइम पे, जस्ट टू चेक कितना पानी में है, एंड काफी पानी में था. बट इवन कि अच्छा चलो क्वेश्चन सारा कवर हो गया, लेट्स स्टार्ट गिविंग मॉक्स नाउ, तब भी फॉर द फर्स्ट आई वुड से फर्स्ट 10 मॉक्स में स्कोर इतना ज्यादा वेरी करता है, इतना इतना आई डोंट थिंक इट रियली रिफ्लेक्ट्स योर प्रिपरेशन देन. एंड सर भी ये बार बार दोहराते थे कि अभी मैटर नहीं करता, स्कोर मैटर नहीं करता. इट्स व्हाट मैटर्स दैट यू रियली लुक कि कहाँ पे फंस रहे हो, एंड उसको एनालाइज करो, उसको इम्प्रूव करो. फर्स्ट 10 मॉक्स में मेरे स्कोर नहीं आते थे अच्छे, बट उसके बाद ऑनवर्ड्स आई थिंक इट स्टार्टेड इम्प्रूविंग, एंड वो इम्प्रूवमेंट भी सिग्निफिकेंट था. सो Okay, so how did you use those early results to fine tune your preparation strategy and make adjustment as you progress?
मैंने एक एक्सेल शीट बना रखा था टू ट्रैक ऑल माय मॉक्स, उनके स्कोर्स, एंड टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जहाँ पे मैं फंस रहा हूँ। मोस्टली ये क्वांट्स में होता था कि अगेन हनी सर का बार बार ये कहना था कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको उस पर मत टाइम वेस्ट करो, अनलेस यू नो कि पढ़ के ही क्वेश्चन को अगर तुम जज नहीं कर पा रहे हो कि आई एम गोइंग टू सॉल्व इट, आई ऑलरेडी नो द मेथड टू सॉल्व दिस, तभी उसको अटेम्प्ट करो। ही हैड गिवन अस दिस 3 स्टेप फॉर्मूला टू आइडेंटिफाई और बेसिकली जोन क्वेश्चंस की इजीली सॉल्वेबल, थोड़ा एफर्ट लगेगा, एंड देन हार्ड क्वेश्चंस, एंड उनको उस फेज में अटेम्प्ट करो, पहले द इजी वंस, देन सेकंड राउंड में मीडियम वंस, एंड देन द हार्ड वंस। ऑल्दो थियोरेटिकली उन्होंने ये दे रखा था, बट वो माइंड इतना जिद्दी होता है, इतना स्टबर्न होता है कि वी डोंट रियली इट्स नॉट इजी टू फॉलो दैट एडवाइस, बट ग्रेजुअली टू कम टू दैट इट टुक सम एफर्ट, एंड वो आया ग्रेजुअली। ऑल्सो कैट के 1-2 महीने पहले अगर 1-2 मॉक्स खराब हो जाए तो उस टाइम पे तुम्हारा स्ट्रेटेजी क्या था? आपने वो सिचुएशन कैसे हैंडल, क्योंकि पहले ही तो बहुत स्ट्रेस होता है, फिर 1-2 ऊपर से मॉक खराब हो गया, तो उस टाइम पे कैसे हैंडल किया वो सिचुएशन? सो आई थिंक वो मॉक देने के बाद के जो 4 घंटे होते हैं वो बहुत ही खराब जाते हैं, बट आई थिंक यू हैव टू पिक योरसेल्फ अप, यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ कि दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये आप साइकिल चलाना सीखते हो तो 4 बार गिरना पड़ता ही है, तभी जाके सीखते हो। सो इट वाज द सेम केस विद दिस, यू हैव टू टेल योरसेल्फ दैट। वो ऑब्वियसली मॉक में स्कोर खराब आता है तो यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग, यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ, बट व्हाट मैटर्स इज पिकिंग योरसेल्फ आफ्टर दैट। सो आई थिंक दैट वाज द फोकस मोर देन ड्राउनिंग इन दैट गिल्ट। So can you walk us through your mock test analysis strategy? राइट, सो एज आई मेंशन, मैंने एक्सेल शीट बना के रखा था। उसमें आई हैड इवन सेग्रीगेटेड सेक्शन वाइज। VARC का अलग सेक्शन था एक्सेल शीट में। व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज आई यूज्ड टू लिस्ट डाउन ऑल द क्वेश्चंस, हर पैसेज, मैं पैसेज का टॉपिक या फिर उसका क्या कौन सा सब्जेक्ट है वो भी नोट डाउन करता था, जैसे पॉलिटिक्स में हो गया, या फिर इफ इट इज अबाउट इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी, I used to note that down. I used to also note down कि कितना टाइम लग रहा है इस पर्टिकुलर पैसेज को, एंड what kind of questions am I not being able to answer correctly, और कहाँ पे फंस रहा हूँ, या फिर लग रहा है कि जो हमको लगता है ना VARC के क्वेश्चंस में कि 50-50 लगता है बिटवीन टू ऑप्शंस, एंड यू एंड अप चूजिंग समटाइम्स द रॉन्ग वन, समटाइम्स द राइट वन, तो वो किन क्वेश्चंस में ज्यादा हो रहा है, वेदर इट इज एन इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन और वेदर इट इज अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो दिस थिंग आई नोटेड डाउन ऑल ऑफ इट, एंड you will start seeing a trend once you do that कि हाँ मुझे inference questions में, या फिर economics is not really a strong point for me, तो आपको ये देखना चालू हो जाएगा। That is how you do the analysis, and then improving on that is basically nothing. You just read up more about it, you get comfortable with the language. Same thing I used to do for DILR कि कौन से type के puzzle में you're getting stuck. Whereas quants में it was more about कि तुम कितनी बार hard question को लेके बैठ जाते हो, and I'll admit even final exam में मेरे साथ ये हुआ था कि मैं उस हार्ड क्वेश्चन को लेकर बैठ गया था। वो थोड़ा एक ईगो आपका ट्रिगर हो जाता है। आई डोंट थिंक इट्स ईगो, आई थिंक इट्स द आई थिंक आपका माइंड बहुत स्टबर्न होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई सफर्ड इन वन क्वेश्चन इन द फाइनल एग्जाम, बट ठीक, आई थिंक इट ऑल वर्कड आउट वेल, सो नॉट मच हार्म। कि रिवीजन पार्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, थ्रू आउट द ईयर आपने क्या पढ़ा वो रिटेन करना, तो वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाउ डिड यू प्लान योर रिवीजन इन द लास्ट 30 to 45 days बिफोर कैट? राइट, आई थिंक बीइंग अ पार्ट ऑफ EG, ये एक एडवांटेज था कि आपको रिवीजन के लिए खुद से कोई मैनुअल एफर्ट नहीं करना पड़ा, बिकॉज हनी सर ने खुद ने इतनी बार क्वांट्स रिवाइज करा के दिया कि यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग डिफरेंटली अपार्ट फ्रॉम दैट। अगर आप सर की एडवाइस फॉलो करते हो, आप वो रेगुलर, सर कभी भी क्लासेस ले लेते थे, रात को 1 बजे टेक्स्ट करते कि आ जाओ, प्रोबेबिलिटी रिवाइज करा देता हूँ, एंड स्टफ लाइक दैट, तो उसमें रिवीजन हो जाती थी। सर ने बहुत स्ट्रिक्टली बोला था कि आप नोट्स वगैरह निकालने में टाइम मत वेस्ट कीजिए, बिकॉज ये अल्टीमेटली रिवाइज होगा। तो इवन आई फॉलो दैट। अल्टीमेट सर ने भी फॉर्मूला शीट्स प्रोवाइड करे थे फॉर एवरी चैप्टर, सो दैट वाज ऑल हैंडी, एंड आई थिंक कुछ कुछ मॉक्स में मैंने नोट डाउन कर रखे थे, स्पेशली इन क्वांट्स, क्वेश्चंस दैट वर आई कुडंट सॉल्व, और यहाँ पे गेटिंग स्टक, ऐसे क्वेश्चंस। सो या इम्पोर्टेंट जो लग रहे हैं उनको बुकमार्क वगैरह करके रखा था। आई डेंट मैनेज टू रिवाइज ऑल ऑफ देम ऑफ कोर्स, बट कुछ कुछ वहां से भी रिवीजन हुआ था, सो दैट हेल्प। तो अभी डायरेक्टली इंटरव्यू स्टेज पे आते हैं। कैन यू शेयर हाउ यू अप्रोच योर इंटरव्यू प्रिपरेशन? व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक टू गेट रेडी फॉर योर पर्सनल इंटरव्यू? So I think interview preparation was an entirely different ball game.
बिकॉज कैट में तुमको पता है कि अच्छा चलो इतना सिलेबस है, इसके बाहर ज्यादा कुछ आएगा नहीं, सो वो टेंजिबल था। बट इंटरव्यू में ऐसे एक तो लोगों के एक्सपीरियंसेस पढ़ के बहुत डर लगता है। ऐसे लगता है कि कुछ भी आ सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो कैसे डील करेगा इसके हाँ। साथ। आई हैड जॉइन द अल्फा जीडीपीआई कोर्स ऑल्सो, जहाँ पे वी वर अलॉटेड मेंटर्स एंड उन्होंने मॉक इंटरव्यूज भी लिए थे। दैट part had helped, and उन्होंने कुछ guidelines दिए थे कि you prepare this these topics, this general things about you. uh, what the main thing for interview preparation was that you need to get your story right. आपको आपकी लाइफ में अभी तक आपने क्या किया है, आपको क्यों एमबीए करना है, and you justify basically everything that has happened in your journey with a legitimate answer, and mostly be honest with whatever it is, because आपकी story unique है, there is no right or wrong answer in that, right? तो वो प्रिपेयर करना था, to list down all your achievements or to list down all the things that you've done that make up your personality. तो एक sort of self reflection सी बात थी। ऑल्सो करंट अफेयर्स के बारे में भी पढ़ना पड़ता है ना बिजनेस स्कूल्स इंटरव्यू के लिए, वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। Correct. हाँ, तो आपने प्रिपेयर किए थे करंट अफेयर्स का? राइट, सो मैं पहले न्यूज़ वगैरह पढ़ता था, बट नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस, इतना हैबिट नहीं था। बट आई थिंक कैट एग्जाम के बाद में मैंने पेपर चालू कर दिया था दोनों। आई वाज रेफरिंग टू द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। तो पूरा पेपर पढ़ के नहीं होता था ऑब्वियसली, एंड दीपांशी मैम ने एक ये लिया था लेक्चर, एक सेशन लिया था, how to actually read a newspaper, because you're not supposed to read everything, right? तो उन्होंने mention किया था कि you just have to read the highlights of the important points, and उसको कैसे you have to basically उस information को कैसे आपको summarize करके retain करना है। So yeah, I think paper पढ़ना and some YouTube videos I used to watch before going to bed every night, news reports and explainer videos. ओके, तो आईएम इंटरव्यूज बहुत ही अनसर्टेन होते हैं, मतलब यू नेवर नो व्हाट दे आस्क इन द इंटरव्यू, राइट? तो Yeah. ऐसा कोई मोमेंट था आपका इंटरव्यू में जहाँ पे आपको स्टक फील हुआ और आप कंफ्यूज हो गए कि इस क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड कैसे करूँ? ऐसा कोई मोमेंट था आपका? Yeah, I think मेरे IIM बैंगलोर के इंटरव्यू में ये हुआ था कि सो एट द वेरी स्टार्ट ऑफ द इंटरव्यू जो फैकल्टी थे, जो सर थे, उन्होंने मुझे पूछा था कि तुमने इंटरव्यूज के लिए कैसे प्रिपेयर किया है, हैव यू जॉइंड द कोर्स? तो मैंने बताया था यस, आई जॉइंड द कोर्स, आई जॉइंड एलिट्सग्रिड। तो उन्होंने बोला अच्छा, तो मॉक इंटरव्यूज वगैरह दिए थे? मतलब हाँ, बोला हाँ, आई गिव अ कपल ऑफ मॉक इंटरव्यूज। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, तो फिर ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो हमने तुमको पूछने चाहिए, और दैट what questions would you not want us to ask you, was the question. तो ये काफी कर्वबॉल था, आई वाज लाइक अभी कैसे इसको हैंडल करूं, बट आई थिंक थोड़ा दिमाग चल गया वहाँ पे, एंड आई वाज एबल टू आंसर कि so I would not want you to ask questions that don't help you determine my fit as a candidate at the institute. So I think वो उससे थोड़ा सा impress हो गए थे कि I was able to sidestep that question. तो इफ कैट एस्पिरेंट आस्क यू कि आपका ईजी का जर्नी कैसा रहा, तो आप क्या बोलेंगे उनको? As is the case with anything that you're pursuing, मेरा जर्नी भी काफी टर्बुलेंट सा था। इट इज नॉट अ लीनियर प्रोग्रेशन। आप मेहनत बहुत करोगे, एंड इट्स नॉट दैट यू स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स इमीडिएटली, बिकॉज जैसे मैंने बताया था कि मॉक्स के साथ कैसे होता है कि फर्स्ट 10 मॉक्स में आपका एफर्ट रिफ्लेक्ट करता ही नहीं है, उसके बाद वो एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगता है, दैट इज व्हेन इट रियली स्टार्ट्स पेइंग ऑफ। तो जस्ट एज विद मॉक्स, आई थिंक that can be termed for my whole journey with EG, for my whole journey with CAT and the later interview stage. It was turbulent, but it was, अगर आप overall picture देखोगे तो it was always rising upwards. So व्हेन यू सॉ दैट यू हैड कन्वर्टेड, जो कंग्रेचुलेशन आपने देखा, तो उस टाइम आपको कैसा फील हुआ? आपका रिएक्शन कैसा था और आपका फैमिली का रिएक्शन कैसा था? the results came out for IIM Bangalore. It came out somewhere around midday, 12:30 बजे के आसपास आ रहे थे emails. And I was reading WhatsApp groups, reading Reddit, उधर लोगों का कुछ कुछ लोगों का आ रहा था, and then obviously लोग speculate करने लगते हैं, नहीं आया मतलब नहीं हुआ वगैरह वगैरह and all of that. So I was also under this, and तो मैं sad हो गया था and मैं सोचा अभी छोड़ो ये, मैं नहाने चले जाता, तो मैं नहाने चले गया, and just I was about to get out, मैंने फोन चेक किया तो इधर ईमेल आया हुआ था, तो मैं वैसे ही भाग गया नीचे टॉवेल लपेट के, एंड आई वेंट एंड शोड माय मम्मा, एंड मदर आल्सो गॉट वेरी हैप्पी, ऑब्वियसली तो रोने लगे। वैसे ही हक किया मुझे, एंड देन आई थिंक फिर पापा भी आए, एंड एवरीबॉडी वाज रियली हैप्पी। तो अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स मेक दैट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम स्कोरिंग अ गुड परसेंटाइल? आपको अगर कुछ सजेशन देना हो एक कैट एस्पिरेंट को, तो आप क्या बताएंगे कि कौन कौन से मिस्टेक उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए ताकि वो लोग भी स्कूल में उन लोगों का भी कॉल्स आए अच्छा परफॉर्म करके? Right. So I think I'll summarize it in 2 or 3 points. Number one would be कि
जैसे होता है ना, आई डोंट थिंक यू शुड रिलाई ऑन मोटिवेशन, बिकॉज वो आते जाते रहेगा. आई थिंक आपको फोकस इस पे रखना होगा कि यू नो व्हाट इज द एंड गोल. तो इवन ऑन द बैड डेज व्हाट मैटर्स इज दैट यू शो अप. तो आप कंसिस्टेंसी बस मेंटेन करो. व्हाट हैपेंस इज दैट आई हैव सीन अ फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स इज दैट फॉर द लैक ऑफ कंसिस्टेंसी वो ऐसे होता है कि देन यू नो दे एंड अप गिविंग अप. तो आई थिंक दैट इज वेरी क्रूशल. सेकेंड वुड भी, अगर मैं एकदम सब्जेक्ट के बारे में बात करूँ, तो आई वुड रीइटरेट दिस पॉइंट जो हनी सर बार बार रीइटरेट करते थे कि आप ईगो ट्रिप मत लो. आपको क्वेश्चंस को डिवाइड करो, एंड द सूनर यू गेट ओवर दिस, द सूनर यू मेक दिस इनटू अ हैबिट कि आपको इजी क्वेश्चंस को अलग जोन आउट करना है, मीडियम क्वेश्चंस को अलग, हार्ड क्वेश्चंस को अलग. जितना सूनर आप ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर लोगे उतना बेटर आपके लिए रहेगा. बिकॉज जैसे मैं बताया, फाइनल में भी मेरे साथ वो चीज़ हुआ है एंड बहुत लोगों के साथ होता है. सो दैट इज आई थिंक अ पिटफॉल. उसको जितना अवॉइड करेंगे उतना बेस्ट. बाकी दोनों सेक्शंस के लिए आई थिंक कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन स्किल. सो I think that would be my take. And for GDPI preparation, what I would say is I think people tend to overdo it. बहुत ज़्यादा GK पढ़ लेंगे, बहुत ज़्यादा current affairs पढ़ लेंगे, which I can understand where it comes from. And maybe मेरे साथ वैसा नहीं हुआ होगा because most of my interviews were centered around my work ex. But what the general takeaway is from all the friends that I've talked to is that it's mostly centered around you. जैसे बोलते हैं कि CAT is a rejection process, and GDPI is a selection process. So they're not there to reject you, they're there to select you. So aapko, you have to be honest, and you have to present yourself in the best possible version. Thank you so much for sharing your journey with us. It was not just insightful, लेकिन बहुत ज़्यादा motivating भी था. बहुत सारे कैट एस्पिरेंट्स जो है आपसे इंस्पिरेशन लेंगे. आप कैसे कैसे अप्रोच किया, वो सारे अप्रोचेस लेके वो लोग भी आगे जाके इम्प्रूव करेंगे अपना स्कोर. So huge congratulations once again on making it to IIM Bangalore. That's an Thank amazing you, ma'am. accomplishment. I'm wishing you all the very best as you step into this exciting new chapter. Wish you all the luck.